ایک اینکر کو نا کبھی کبھار سچ کی قیمت چکانی پڑتی ہے، کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا؟ الحمدللہ میں نے کبھی قیمت نہیں چکائی۔ خواتین کے لیے یہ فیلڈ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ تو یہ چیلنجز ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو ظاہری طور پہ بہت اچھے لگ رہے ہوں گے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ آج ان بائسڈ ہے۔ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ ہر چینل کی اپنی پالیسی ہے، ہر چینل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس نے کیا دکھانا ہے۔ تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا مینٹور ہوتا ہے، آپ کا کون ہے؟ ریحان طارق صاحب ہے، دستک پروگرام کرتے ہیں، میں فین ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل وزڈم۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے سامنے ایسے مہمان لے کر آئیں جو ہماری اور آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچیومنٹ سیکھی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے بڑی لیسنس ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنی 2.5 سال کے عرصے میں میڈیا انڈسٹری میں ایک بہت ہی زبردست مقام حاصل کیا ہے، بہت ہی سنجیدگی سے کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے اور اپنی شخصیت کے لحاظ سے بہت ہی نکھری ہوئی اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں اقرا آغا کی، جو کہ پوڈ کاسٹر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں۔ آج آپ کو ملوائیں گے اور ڈسکس کریں گے ان کی اچیومنٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اقرا، 2.5 سال کے عرصے میں ماشاءاللہ اتنا اچھا ایک آپ نے مقام اپنا میڈیا انڈسٹری میں حاصل کیا۔ جرنی کی بات کرتے ہیں، بگننگ آف یور جرنی کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، یا بچپن سے شوق تھا؟ اچھا، میں آپ کو اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں۔ مجھے یہ کبھی بھی نہیں بچپن سے پتا تھا کہ مجھے اینکر بننا ہے، لیکن جب میں 2nd ایئر میں تھی تو مارننگ شو کا بڑا کانسیپٹ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی مدر کو کہتی ہوتی تھی، میری مدر اور میری نانو وہ دیکھتی ہوتی تھی مارننگ شو، اور میں ہمیشہ جب بھی سو کے اٹھ کے آتی تھی نا، میں کہتی تھی ماما لائف تو ایسی چاہیے، بس اٹھو، آپ تیار ہو، باتیں کرو۔ بولنے کا شوق تھا، میں کہتی تھی باتیں کرو، باتیں کر کے پیسہ کما لو۔ مجھے بڑا شوق ہے صبح صبح اٹھ کے بس آپ تیار شیار ہو کے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد بس آپ باتیں کرو اور باتیں کر کے آپ ارن بھی کر لو۔ تو ماما کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پھر میرے نا 2nd ایئر میں ہی میرے کالج میں میرے پرنسپل جو ہوتے تھے وہ ہمیشہ میری ماما کو کہتے تھے یہ میڈیا میں جائے گی۔ حالانکہ میں نے کچھ نہیں سوچا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں آگے جا کے میس کام پڑھوں گی، میڈیا اسٹڈیز میں جاؤں گی، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو وہ میرے پرنسپل میری مدر کو کہتے ہوتے تھے یہ ٹی وی والا فیس ہے، یہ ٹی وی پہ جائے گی، اور میں انہیں ہمیشہ کہتی تھی اللہ آپ کی زبان مبارک کرے۔ تو اس کے بعد بس میں نے FSC کے بعد مجھے شوق تھا NCA سے ڈیزائننگ کرنے کا، لیکن میرے فادر کی کچھ ٹائم پہلے ڈیتھ ہوئی تھی، تو میری مدر نے کہا کہ بھئی آپ کو میں ابھی لاہور نہیں بھیج سکتی، بیسیکلی آئی ایم فرام فیصل آباد۔ تو انہوں نے کہا ابھی تو نہیں میں بھیج سکتی، تو ابھی تو آپ ادھر ہی رہو۔ پھر میں نے کہا اب آپ کی مرضی، جو آپ نے کرانا ہے کرا دیں۔ انہوں نے میرے لیے میس کمیونیکیشن چوز کیا، لیکن میں بہت ایکسیڈنٹلی میس کام میں گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے میس کام چوز کیا، پھر میں نے جب پڑھنا اسٹارٹ کیا تو اس میں بھی چیلنجز آئے کہ یہ تو آپ کو روڈس پہ جا کے رپورٹنگ کرنی پڑتی ہے، آن کیمرہ رپورٹنگ، تو یہ تو آپ کوئٹ کر دو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا نہیں؟ لیکن ایم سوری، اب تو 3 سیمسٹرز ہو گئے، اب کیسے کوئٹ کر دوں، اب تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو اقرا پیرنٹس کا بہت دیکھا گیا ہے کہ ہماری میڈیا انڈسٹری میں پیرنٹس کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور کچھ مت بھی اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ میڈیا جو انڈسٹری ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں اس چیز کو کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا اور آپ کے مینٹور بھی بن گئے اور آپ کو آگے بھی لے کر آئے؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے مجھے بھی پرمیشن نہیں تھی، بالکل پرمیشن نہیں تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنگل مدر اور انہیں بیٹی کو لے کے چلنا بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے، بہت چیلنجز ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، سراؤنڈنگ ہوتی ہے، جو سب آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو میری مدر نے بھی کہا تھا میڈیا پڑھ لو، مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے MPhil میڈیا اسٹڈیز میں کرٹیسزم انہوں نے بھی سہا۔ ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے فیملی پریشر، سراؤنڈنگ پریشر، سوسائٹی پریشر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، تو میڈیا اسٹڈیز میں مجھے MPhil بھی کروایا اور کنیٹ سے کروایا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے روکا، کبھی نہیں روکا کسی چیز سے، لیکن ایک ان کی چھوٹی سی خواہش تھی کہ پڑھ لو لیکن مجھے یہ نہ کہنا میڈیا میں جانا ہے۔ تو میں نے بھی کبھی فورس نہیں کیا، میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ تو یہی ریزن تھی کہ میں نے میڈیا پڑھنے کے بعد بھی 4 سال میڈیا کو جوائن نہیں کیا، میں ٹیچنگ کرتی رہی ہوں پہلے۔ تو اس کے بعد میں نے ایک اینکرس کے ساتھ ٹرپ کیا تھا، 1 نائٹ ٹرپ تھا پتریاٹا کا۔ تو وہاں پہ جب میں اینکرس کے ساتھ گئی تھی تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں خود کو شاید ضائع کر رہی ہوں۔ میں ٹیچنگ میں تو شاید بہت اچھی ہو گئی ہوں، لیکن جو ان کی لائف ہے، جو میں نے پڑھا ہوا ہے، وہ تو سب میں بھولتی جا رہی ہوں۔ پھر میں واپس آئی اور پھر میں نے ماما کو کہا کہ اب تو میں MPhil کر چکی ہوں اور اب میں اتنی میچور ہوں
तो आप एक दफ़ा दिल बड़ा करके मुझे परमिशन फिर आपको परमिशन मिल गई और वहाँ से आप लेकिन जब उन्होंने मुझे परमिशन दी तो उन्होंने मुझे, इवन मैं 3 भाइयों की बहन हूँ एक, अच्छा, मेरे भाई इतने सपोर्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं अपने मदर और अपने भाइयों का नहीं कहूँगी, मेरी पूरी सराउंडिंग में मेरे कज़न्स वो सब। अब तो मैं बस कहती हूँ कि मुझे इसका इंटरव्यू करना है, मुझे ये कवरेज करनी है, मुझे ये प्रीमियर ज्वाइन करना है, मैंने ये होस्ट करना है, तो वो सब मुझे बूस्टअप ही करता है, हमेशा मेरा कॉन्फिडेंस ही बने है। अब वो कभी भी नहीं, मेरा मोराल कभी भी नहीं डाउन करते। ज़बरदस्त। अच्छा, मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है आपके करियर का? मेमोरेबल मोमेंट बहुत सारे हैं, जैसे करियर में तो नहीं, करियर से थोड़ा सा पीछे जाऊंगी। जब मैं एमफिल कर रही थी मीडिया स्टडीज़ में, तो मुझे नोटेबल रावियंस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, जिसमें मैंने एतजाज़ अहसन का इंटरव्यू किया था, मैंने यूसुफ रज़ा गिलानी का इंटरव्यू किया था, बानो कुदसिया का उनकी डेथ से 2 वीक्स पहले मैंने इंटरव्यू किया था। तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और वो मेरे लिए एक अचीवमेंट भी है कि स्टार्टिंग में ही, बेशक ड्यूरिंग बहुत अच्छे लोगों का आपने इंटरव्यू किया, मैंने सीखने को भी एग्जैक्टली सीखने को भी मिला था और उन्होंने बड़ा मुझे अप्रिशिएट भी किया था। ज़बरदस्त। अच्छा, ख़वातीन के लिए ये फील्ड थोड़ी सी मुश्किल होती है, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस अगर तो मैं मीडिया में स्टेप इन करने से पहले कहूँ तो वो ये होते हैं कि आपको ये लग रहा होता है यार ये बड़ा लॉन्ग जर्नी है, पता नहीं आपको स्क्रीन कब मिलेगी। जैसे मुझे एंकरिंग में आना था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं डेस्क वर्क स्टार्ट करूँ या बैक कैमरा कोई काम करूँ, मुझे वैसा नहीं करना था, मुझे ऑन कैमरा आना था। तो मीडिया में आने से पहले चैलेंजेस और होते हैं, लेकिन मीडिया में आने के बाद मीडिया की ना एक अपनी दुनिया है, ठीक है, इसमें आके रहना और सरवाइव करना ये बहुत कमाल की बात है। ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे ही होते हैं, आपको बहुत सारे अच्छे लोग भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छे लोग आपको ढूंढने पड़ते हैं और आपने फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है और उनसे सीखना होता है। तो ये चैलेंजेस है कि आपने देखना है, लोग आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो आपको ज़ाहरी तौर पे बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपने इसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना और आपने इससे कितना लर्न करना। ठीक है। अच्छा, एक एंकर को ना कभी कभार सच की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी ऐसा आपके साथ हुआ? मैं बहुत ही सच्ची हूँ मैं इतनी सच्ची हूँ कि मेरी फ्रेंड्स मुझे कभी कभार कह रही होती है इतनी ओवर शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया करो। तो मैं हमेशा सच बोल देती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कीमत नहीं चुकाई, मतलब बैलेंस रहा है। हाँ, बैलेंस रहा है। अच्छा, अगर आज की मीडिया की बात करें तो किस निगाह से देखती हैं कि हमारा जो मीडिया है वो आज अनबाइस्ड है, अभी भी क्या गैर जानबदार है? अनबाइस्ड कह भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते। इसमें मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि हर चैनल की अपनी पॉलिसी है, हर चैनल ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उसने क्या दिखाना है, ठीक है। तो इस पे मैं अगर थोड़ी कम ही बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद मीडिया में हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पॉलिसी को अपना ओपिनियन होता है ना कि हाँ ये चीज़ इस तरह से है। बिल्कुल। अच्छा, आपका लाइफ में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वाक़या जो आप शेयर करना चाहती हो हमारे देखने वालों से, बिहाइंड द कैमरा, या आप जब कैमरे के सामने होती है तो बड़ा आपको एक याद रहता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है या कोई एक ऐसा अच्छा वाक़या होता है? सोचना पड़ेगा लाइफ में इस 2 साल के अरसे में। मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मेरा हर ही इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट इतना मज़े का जाता है और मेरी हर गेस्ट के साथ इतनी अच्छी एफिलिएशन, मतलब सारी अचीवमेंट जो है वो सारे एक जो मेरी ना गेस्ट के साथ एफिलिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि मेरा जो भी गेस्ट एक दफ़ा आता है ना, वो दूसरी दफ़ा लाजमी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतना अच्छा आपका उनके साथ बॉन्ड इतना अच्छा बन जाता है कि। अच्छा, इकरा ये बताइएगा कि इस पूरे 2 साल के अरसे में, टीचिंग तो एक अलग फील्ड है, जब आप यहाँ पे आई एक अचीवमेंट होती है कि मैं अब यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्या कहेंगी इस हवाले से? यार मैं शुक्र है मैंने टीचिंग की हुई थी तो मुझे बोलने में ज़रा इतना प्रॉब्लम नहीं आया तो टीचिंग का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जब मैं इधर आई थी, मैं आई तो फॉर इंटर्नशिप थी इस चैनल में, लेकिन उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया, और पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था एक इंडिविजुअल एक ऑनर के साथ, उसके बाद मैं जर्नल्स, ब्रिगेडियर्स और सबके साथ बैठी थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने सबने एक ही बात की थी, इनू कादी लोड़ है इंटर्नशिप दी, इनू सीधा एंकरिंग च पाओ बोलती है आपके, ये भी बड़ा एज होता है टीचर के लिए कि बहुत अच्छा बोलने की वजह से भी आपको इंटर्नशिप की तरफ जाने। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला आपको आपके टाइम पे ही उस पोजीशन पे लाता है जब आपने आना होता है। शायद अगर मैंने टीचिंग ना की होती तो जिस लेवल पे मैं अब हूँ मैं ना होती, तो वो मैंने शायद टीचिंग की हुई थी, मुझे पेरेंट्स के साथ डील करना आता था, मुझे लोगों के साथ बात करनी आती थी। तो जब मैं इंटर्नशिप के लिए भी इधर आई तो मुझे डायरेक्ट जो है वो
ऑन कैमरा ही पोजीशन मिली, मैं एंकरिंग में ही आई हूँ, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, कोई इंटर्नशिप नहीं की और सीधा मैं एंकर की पोजीशन। क्या पैगाम देना चाहेंगी जो सहाफ़त की लाइन में आना चाहते हैं, जो एक अच्छे एंकर पॉडकास्टर बनना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है? अच्छा, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी पहले तो स्टूडेंट्स को कि जो जर्नलिज़्म को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपने खुद को वेस्ट नहीं करना। अगर आप जर्नलिज़्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, तो 4th या 5th सेमेस्टर के बाद आपने फील्ड में आना है। थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुख्तलिफ है। उसके बाद एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी पेरेंट्स को, खुदारा अपने बच्चों के लिए ये मत सोचे कि इस फील्ड में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस फील्ड में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आप अपने बच्चों का ब्रॉटअप अच्छा करें, उनकी तरबियत इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको ये यकीन हो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स का नाम हमेशा रोशन करेंगे और वो अपने पेरेंट्स का नाम कभी भी डूबने नहीं देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ ना लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और हमेशा अपनाते हैं। आप अपनी लाइफ में कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करती हैं हमेशा, और आपका मेंटोर कौन है? अच्छा, मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि अभी मीडिया से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहती भी हूँ और अल्लाह करे अल्लाह ताला मुझे इस पर हमेशा जो है ना वो कायम व दायम रखे। वो ये है कि हम जब मीडिया पे आ जाते हैं ना तो वो सिर्फ हम नहीं होते, वो हमें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोगों के आइडियल होते हैं। तो हमें वो कंटेंट देना चाहिए जो कि अगर कोई फॉलो भी करे ना उसका नुकसान ना हो। जैसे मैंने भी एक टाइम पे व्लॉगिंग की थी, मैं जब YouTube का शौक़ हुआ मैंने भी अपना चैनल बनाया, मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की, लेकिन मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। मुझे लगता था यार मेरी लाइफ से लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं क्या कंटेंट दे रही हूँ कि मैं उठ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा, सिर्फ मैं अपना आप एक्सपोज कर रही हूँ। तो क्या ज़रूरत है? हमें कंटेंट वो देना चाहिए, हम अगर ऑन कैमरा आके बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बोल जाएं, कुछ ऐसा कर जाएं कि अगर हमारे सुनने वालों के लिए उनकी लाइफ में कुछ अच्छा आ सके, उनकी लाइफ में बेहतरी आ सके। तो इस तरह का कंटेंट हमें ऑन कैमरा आके, क्योंकि जब हम ऑन कैमरा आ जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बात करें तो हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई उसका मेंटोर होता है। आपका कौन है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी। अच्छा, मेरे मेंटोर, मैंने मीडिया में स्टेप इन करने से पहले ना 3 मंथ्स का कोर्स किया था एंकरिंग का। रेहान तारिक साहब है, दस्तक प्रोग्राम करते हैं, मैं फ़ैन हूँ उनकी, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं। और जो उन्होंने मुझे सिखाया है वो शायद मुझे 6 साल की मेरी पढ़ाई ने भी नहीं सिखाया था। कि मैंने 4 साल BS के, देन 2 साल MPhil के, तो मुझे जो उन्होंने 3 महीने में सिखाया था वो मैं 6 साल की अपनी तालीम से भी नहीं सीख सकी थी। अब रेहान तारिक साहब को सुनती है तो फिर खुद को कहाँ देखती हैं? हाय, मैं तो दुआ करती हूँ कि काश मैं उन जैसा बोल सकूँ। और मैं उनको ये बात गोल अचीव करना होता है कि मैं खुद को इतने सालों में यहाँ पे देखती हूँ, अगर मेरे मेंटोर ये हैं तो। नहीं, मैं उन तक तो कभी नहीं जा सकती, वो मेरे उस्ताद हैं और मैं उनसे पीछे ही ठीक हूँ। मैं उन तक जाना नहीं चाहती, वो मेरे उस्ताद हैं। ठीक हो गया, ठीक है। इकरा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और अपनी जर्नी इतनी अच्छी शेयर की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप मुस्तकबिल में कहीं पे भी किसी भी जगह आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला जो आपका एम होना चाहिए, आपको मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीश क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों का पता है तो कोई भी आपके रास्ते में रुकावट जो है आपकी जो मंजिल को नहीं रोक सकती है। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।